Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter types of software for class 9th of computer application subject. In today's online class we will discuss about the difference between hardware and software. Then we will discuss about how softwares are categorized, then what is system software and what is the meaning of operating system. So now let's start our today's online class and move to computer screen. So our third chapter is types of software. A computer system consists of hardware and software for its proper functioning. So we must know about what is the meaning of hardware and software. Hardware represents the physical and tangible components of our computer system like all input devices, output devices, CPU, floppy, hard disks, etc. These are the example of computer hardware. मीन्स हमारे कंप्यूटर सेगमेंट्स के जितने भी कंपोनेंट टेंजिबल हों या फिजिकल फॉर्म में हों उनको हम कहेंगे हार्डवेयर. सेकेंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर? Software represents the set of programs that govern the operation of a computer system and make the hardware run. यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और हमारे कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही प्रॉपर्ली वर्किंग में आते हैं. तो बिना सॉफ्टवेयर के हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, यानी हम उस पर टास्क को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम्स that control internal computer operation and make best use of the hardware. यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इंटरनल फंक्शनैलिटी होती है उसको ऑपरेट करने का वर्क जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हम हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें. तो हमारी जितने भी इंटरनल वर्किंग होती है वो सब किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू. Internal computer operation means reading data from input devices, transmitting processed information to the output devices, checking system components, converting data or instruction to computer understandable form, etc. So the system software can further be classified into following categories. First, operating system. Second, language processor. Third, utilities or utility software. So first point, what is operating system? An operating system is a program which acts as an interface between a user and hardware components. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है जो यूजर को हार्डवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, जिससे हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को या कमांड को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक पहुंचा सकते हैं. तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल. मिस्टर ए हैज़ ए सेक्रेटरी नेम मिस बी. मिस्टर ए ऑर्डर मिस बी टू डू द फॉलोइंग टास्क लाइक कॉल मिस्टर एक्स टू फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विथ हिम, फ्रेम ए लेटर इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेरी मेड बाय मिस्टर जी, रिजर्व ए सीट इन द सेमिनार, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स टुमारो, etc. In this example, Miss B is capable of carrying out all the orders given by Mr. A. Notice that for all the above mentioned things, Mr. A has directed or instructed Miss B, but Mr. X has not told or instructed Miss B about how to call Mr. X, how to frame a letter, how to reserve a seat, how to prepare a list, how to find out a project's status. This means that somewhere down the line Mr. A assumed that Miss B knows how to call someone or how to frame a letter. Major components of a computer system are hardware, operating system, application program and humanware. So these are the four important elements or components of our computer system,
and without these four we cannot perform any tasks. Let's recall our previous example. The boss or user give instruction to the secretary, or we can say that the operating system. Then the secretary or operating system now add additional information and instruction required to perform the tasks. यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करता है, कोड या इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है ताकि हम उस टास्क को बेटर वे में परफॉर्म कर सकें. द एक्सपेंडेड इंस्ट्रक्शन आर नाउ हैंडेड ओवर टू द हार्डवेयर. इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ भेजता है? हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे. द कंप्यूटर नाउ परफॉर्म एग्जैक्टली द सेम वे एज स्पेसिफाइड इन द एक्सपेंडेड इंस्ट्रक्शन. और हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको एग्जैक्ट वे में परफॉर्म करता है जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शन पास की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. सो स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.